connect us and break down barriers when we unite to nurture the best in us and help each other succeed. Good evening to all. Today is International Mother Language Day or Matrabhasha Divas, recognizing Bangladesh battle and sacrifices made for the mother tongue Bangla. Now, it is a worldwide annual observance held on 21st February to promote awareness of linguistic and cultural diversity and to promote multilingualism. Language is a system of communication which consists of a set of sounds and written symbols which are used by the people of a particular country or region for talking or writing. Learning more languages is useful as it offers more windows to the world besides enabling cross-cultural understanding, peace and harmony. All around the world, there are multi-languages in different cultures. Some are extinct and some are surviving. Mother tongue is the underlying component of identify one's culture, and every effort should be made to protect the linguistic diversity. UNESCO has expressed concern over one world languages becoming extinct every 2 weeks. To counter this problem, UNESCO established the International Mother Language Day every year on February 21st all over the world. According to UN estimate, nearly 500 million students from pre-primary to upper secondary school were unable to access learning during COVID-19 in remote areas. Although digital content was available but in major world languages, so these programs were of no use for multilingual education system used in remote minorities. This year, International Mother's Language Day theme is Using Technology for Multilingual Learning. UNESCO has engaged 3 languages as mandatory for education, that is mother tongue, a regional or national language, and an international language. The new education policy or NEP 2020 has set out measures to promote multilinguistic method of education in our country. As India has more than 200 different languages, this policy will improve both quality of delivering and receiving education in regional areas. This will increase talent from regional areas and a better India. Thank you. नमस्कार। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और जिस भाषा को हम जन्म से बोलते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, जो भाषा और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आज मैं आपके समक्ष हमारी मातृभाषा पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हिंद हिंदी हिंदुस्तान। हम भारत वालों की शान, हम भारत वालों की शान, हिंद हिंदी हिंदुस्तान, हिंद हिंदी हिंदुस्तान। इसकी लाज बचाने को, इसकी लाज बचाने को हम कर देंगे जीवन कुर्बान। हम भारत वालों की शान, हम भारत वालों की शान, हिंद हिंदी हिंदुस्तान। आजादी जब मिली देश को, आजादी जब मिली देश को, जंजीरों से हुए आजाद। टूटे सब बंधन गुलामी के, सपनों से फिर हुए आजाद। हम भारत वालों की शान, हम भारत वालों की शान, हिंद हिंदी हिंदुस्तान। उठी आवाज है घर घर से, उठी आवाज है घर घर से, सब भाषा का हो सम्मान। हर जाति हर धर्म की मानो, हर जाति हर धर्म की मानो, देंगे निज भाषा की मान। हम भारत वालों की शान, हम भारत वालों की शान, हिंद हिंदी हिंदुस्तान। मीठी सबसे सुंदर, सबसे मीठी सबसे सुंदर, सरल सहज बोली है मान। लिखते हैं जो वही है पढ़ते, लिखते हैं जो वही है पढ़ते, यही है इस भाषा की शान। हम भारत वालों की शान, हम भारत वालों की शान, हिंद हिंदी हिंदुस्तान। जनमानस का है आह्वान, जनमानस का है आह्वान, हिंदी से भारत है महान। दादा दादी नाना नानी, दादा दादी नाना नानी, सब मिलकर करते गुणगान,
हिंद हिंदी हिंदुस्तान, हम भारत वालों की शान, हिंद हिंदी हिंदुस्तान। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूँ हमदा जहांगीर, कक्षा 9वीं का से। मातृभाषा वह भाषा है जिसके द्वारा हम अपनी संस्कृति से जुड़ पाते हैं तथा उसे समझ पाते हैं। यह वह भाषा है जिससे हम अपने विचारों तथा भावनाओं को प्रकट करना पहली बार सीख पाते हैं। मानव जिस भाषा को बचपन से बोलता व अपनाता है उसी भाषा को मातृभाषा कहते हैं। हमारे देश भारत में अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं। जहाँ किसी की मातृभाषा मलयाली है वहीं किसी की मराठी, और यह विविध प्रकार की भाषाएं ही हम सबको विशेष बनाती हैं। परंतु आज की पीढ़ी अपनी मातृभाषा से संबंध खोती जा रही है। विद्यालयों में सारे विषय अंग्रेजी में पढ़ाए जाने लगे हैं। इसी कारण बच्चे अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं। मातृभाषा के महत्व के प्रति जागरूकता की जल्द आवश्यकता है। मातृभाषा दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि हम अपनी मातृभाषा को समझें और इसके माध्यम से अपनी संस्कृति से भी जुड़ पाएं। इस दिवस को पूरे विश्व में 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य यह भी है कि हम दूसरों की भाषाओं को भी समझें ताकि हम इन्हें बोलने वाले लोगों और उनकी संस्कृति को भी समझ पाएं। हम सबको अपनी तथा दूसरों की विविध प्रकार की भाषाओं और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि विविधता में ही एकता है। मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रेया बोस, कक्षा 9वीं की छात्रा आज आपके समक्ष मातृभाषा दिवस के अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे हम उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी इंसान की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जिस भाषा को मनुष्य स्वाभाविक अनुकरण द्वारा बचपन में सीखता है उसे हम उसकी मातृभाषा कहते हैं। अर्थात जिस भाषा को हम अपनी माता की गोद में सीखते हैं वह हमारी मातृभाषा हो सकती है। किसी भी समाज की मातृभाषा उस समाज की संस्कृति की पहचान ही नहीं बल्कि आर्थिक संपन्नता का आधार भी होती है। मातृभाषा का नष्ट होना राष्ट्र की प्रासंगिकता का नष्ट होना होता है। किसी भी समाज की संस्कृति उस समाज के खान पान, पहनावे और भाषा से परिभाषित होती है। भारत में 19,500 भाषाएं मातृभाषा के तौर पर बोली जाती है, जबकि 98% लोग संविधान में बताई गई 8वीं सूची में से 22 भाषाओं में से किसी एक को अपनी मातृभाषा मानते हैं। मातृभाषा न केवल हमें संस्कृति और धरोहर से जोड़ती है बल्कि उसे आगे ले जाने में भी सहायक होती है। मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने इसे स्वीकृति दी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व में भाषाई एवं सामाजिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा मिले। मातृभाषा दिवस मनाने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि लोगों को हर भाषा का ज्ञान हो और इसके माध्यम से देश की संस्कृति बनी रहे। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति उसे माना जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां शिक्षित व्यक्ति वो माना जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या ना हो पर अंग्रेजी में जरूर हो। यहाँ स्थिति विपरीत है। यहाँ छत्तीसगढ़ी को अपनी मातृभाषा बोलने पर अनपढ़ कहा जाता है। वैसे तो हमारे देश में कई भाषाएं मातृभाषा के तौर पर है, लेकिन हिंदी को यहाँ पर मातृभाषा के तौर पर दर्ज किया गया है क्योंकि हिंदी को यहाँ सब लोग समझते और बोलते हैं। मातृभाषा के प्रति घटती रुचि का एक यह कारण हो सकता है कि इसे घर में बोलने और सुनने के अलावा ऑफिस आदि कार्यों में बोलना कम होता है। मातृभाषा में बच्चों का बात न करना अब एक फैशन बन गया है। इससे गांव के बच्चों और शहर के बच्चों में दूरियां बढ़ रही है। गांव के बच्चे जो अपनी सब कुछ मातृभाषा के सीखते हैं अपने को हीन, और शहर के बच्चे जो सब कुछ अंग्रेजी में सीखते हैं स्वयं को बेहतर और श्रेष्ठ समझने लगे हैं। इस सोच को बदलना चाहिए, नहीं तो हम अवश्य कुछ खो देंगे। मातृभाषा हमें राष्ट्रीयता से जोड़ती है और देश प्रेम की भावना भी जगाती है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है कि निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही के सूल। अर्थात मातृभाषा के बिना किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है और राष्ट्र का निर्माण बिना मातृभाषा के नहीं हो सकता। अतः मातृभाषा को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि हमको पालने वाली हमारी माँ होती है, तो हमारी मातृभाषा भी हमारी माँ है, क्योंकि ये हमें पालने का काम करती है। इसीलिए इसे माँ और मातृभूमि के समान दर्जा दिया गया है। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय श्रोतागण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम वर्णिका यादव है और मैं कक्षा 8वीं ई की छात्रा हूँ। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा का इस्तेमाल करता है। भाषा की यह खोज मनुष्य को अन्य प्राणियों से सभ्य तथा विशेष बनाती है। जन्म लेने के बाद मनुष्य जो प्रथम भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। आज 21 फरवरी के दिन हम सब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मना रहे हैं। विश्व में भाषाई व सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए तथा बहुभाषिता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार 21 फरवरी ही वह विशेष तारीख क्यों चुनी गई कि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाए। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने निकलते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इसकी जड़ें भारत के इतिहास से जुड़ी हुई है। सन 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान अर्थात आज के बांग्लादेश में उर्दू भाषा को वहाँ की राष्ट्रभाषा घोषित कर दी, लेकिन वहाँ बांग्ला बोलने वाले लोगों की अधिकता थी। सन 1952 में जब अन्य भाषाओं के प्रयोग को अमान्य घोषित कर दिया गया, उस समय ढाका महाविद्यालय के कुछ छात्रों तथा आम नागरिकों ने उसके प्रति विरोध जाहिर करते हुए एक आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों ने निहत्थे आंदोलनकर्ताओं पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। अपनी मातृभाषा की आज़ादी में लड़ते हुए मारे गए शहीदों की याद में आज स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। सन 1999 में यूनेस्को महासभा में कई बड़ी ताकतों ने मिलकर यह निश्चय किया कि हर वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाए। मातृभाषा किसी भी इंसान की पहचान होती है, लेकिन आजकल तथाकथित आधुनिकता के रंग में रंगते हुए तथा प्रगतिशील दिखने की चाह में हम मातृभाषा के प्रयोग से बचते हैं। आजकल दफ्तरों तथा व्यापारिक दुनिया में मातृभाषा के प्रयोग को हीन भाव से देखा जाता है। महात्मा गांधी ने ऐसे लोगों के लिए कहा था कि मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के समान है। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि हम भारत के नागरिक हैं, एक ऐसा देश जो आने वाले समय में एक प्रगतिशील तथा प्रभावशाली देश के रूप में उभरने वाला है। हमें यह प्रण करना होगा कि हम किसी भी मनुष्य की मातृभाषा का अधिकार उससे कभी नहीं छीनेंगे और यदि ऐसा होगा तो उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ निश्चित रूप से उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।